Hello everyone. Today we start your animal diversity chapter. Clear? Animal diversity chapter. If we discuss about animal diversity, we see our surrounding and we see various type of organisms. Clear? We see various type of organisms. Some are very minute in size and some are very big in size. Clear? Like sponges, poriferas, animals, protozoans, coelentrates. We see various variety of organisms. Here we discuss invertebrate phylum. Invertebrate phylum means those phylums which have not a skeleton or backbone. Clear? This is the animal diversity and invertebrate phylum. Invertebrate phylum. Now we come to the introduction, and these are the animals of invertebrates like frog, protozoans like amoeba, euglena, paramecium. Clear? These are the animals of invertebrates. We discuss about animal diversity. Animal diversity means the language of complexity. Clear? The language of complexity means those organisms which have complex structure of their body. Animals invertebrate means those animals without vertebral column. It means backbone are absent. All animals which come under the category of invertebrate animals में क्या होगा? Vertebral column. It means backbone absent होगा. Clear? These are the animals which have no backbone like butterfly, snail, jellyfish, etc. Various type of organism which have not backbone. Clear? These are the invertebrate animals. Now we come to the vertebrate. Vertebrate means animals which possess vertebral column. That means which have a skeleton like tiger, elephant, monkey, birds, etc. Various kinds of organisms which have backbone we studied under category of vertebrate. Invertebrate means क्या होता है? Those animals which have not vertebral column or backbone. Clear? और vertebrate means क्या हो जाएगा? Those animals which wear backbone or vertebral column. Clear? These are the vertebrates. Now we discuss 10 major invertebrate phylum. हमारे सराउंडिंग में हमारी अर्थ पर जितने भी इन्वर्टिब्रेट फाइलम के एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज द पोरीफेरा. फर्स्ट फाइलम क्या है? पोरीफेरा. पोरीफेरा मीन्स क्या होता है? पोर बियरिंग एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स. हम उनको किसके अंदर स्टडी करेंगे? पोरीफेरा के अंदर. ओके. नेक्स्ट है नाइडीरिया. नाइडीरिया इज ऑल्सो नोन एज सीलेंट्रेटा. क्लियर? नाइडीरिया इज द न्यू नेम ऑफ द फाइलम एंड सीलेंट्रेटा इज द ओल्ड नेम. क्लियर? नेक्स्ट है टीनोफोरा. Then we discuss about platyhelminthes. Platyhelminthes are also known as flatworm. Next phylum Nematoda. Then Annelida. Then Arthropoda. Then Mollusca. And then Echinodermata. Then Hemichordata. Clear? These are the 10 phylums we studied under this class. For now we come to the first phylum, and first phylum is Porifera. Phylum Porifera means pore bearing animals. Those animals which have pores in their body. Members of Porifera have some own peculiar features. Clear? जितने भी members Porifera के होते हैं उनके खुद के कुछ peculiar features होते हैं जिस कारण इनको हम क्या कहते हैं?
पैराजोआ, और इनको कहाँ रखा गया है? अंडर कैटेगरी ऑफ पैराजोआ। क्लियर? बिकॉज members of Porifera have some peculiar features. Due to presence of some peculiar features, they are placed under Parazoa. And study of Parazoa or Porifera animals are also known as parazoology. These are the animals of phylum Porifera. Clear? Phylum Porifera come under category under subkingdom Parazoa, and animals which present in phylum Porifera are studied in parazoology. Clear? They are also evolutionary blind offshoot. Robert Grian. This is the scientist Robert Grian which established the phylum Porifera. Phylum Porifera या फिर संघ पोरीफेरा की स्थापना रॉबर्ट ग्रांट नाम के साइंटिस्ट ने की। क्लियर? पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट हो? पोर्स प्रेजेंट हो। उनको हम किस फाइलम के अंडरगट स्टडी करते हैं? तो हम पोरीफेरा के अंदर स्टडी करते हैं। फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली क्या कहा जाता है? स्पॉन्ज। Sponges because it's look like a sponge because it have pores in their body. These are the animals. They are generally marine. जितने भी एनिमल्स फाइलम पोरीफेरा में आते हैं उसमें से ज्यादातर एनिमल्स कैसे होते हैं? मरीन, यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। क्लियर? और फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में कौन सा एनिमल पाया जाएगा? स्पॉन्जिला। क्लियर? जितने भी एनिमल्स हम स्टडी करेंगे फाइलम पोरीफेरा में सब किस फैमिली में आते हैं? पोटामोलिपिडेई। क्लियर? और किस में आते हैं? स्पॉन्जिलिडेई। जनरली दे जितने भी एनिमल्स इन दोनों क्लासेस में आते हैं, इन दोनों फैमिली में आते हैं, सब कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। दीज आर द एनिमल्स प्रेजेंट इन फाइलम पोरीफेरा। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एंड सेसाइल एनिमल्स। प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन, आदिम। ठीक है? और कैसे होते हैं? बहुकोशिकी। सेसाइल एनिमल्स होते हैं यानी स्थानबद्ध। ये किसी प्लेस से क्या रहते हैं? चिपके रहते हैं, स्थानबद्ध। बिकॉज दे आर इमोबाइल। इमोबाइल मीन्स ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जा सकते। क्लियर? ये कैसे होते हैं? दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, इट मीन्स बहुकोशिकी। और कैसे होते हैं? सेसाइल एनिमल्स, दैट मीन्स स्थानबद्ध। सम एनिमल्स आर shows radial symmetry and some are asymmetrical. अगर हम इनकी बॉडी की सममिति की बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या शो करते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। दैट मीन्स कि उनको अगर हम किसी भी एंगल से कट करें हम उनकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड सम एनिमल्स आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स उनकी बॉडी को हम किसी भी एंगल से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। These are the animals which shows radially symmetrical and these are the animal which is asymmetrical. Clear? ये एनिमल कैसा है? रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी इसकी बॉडी को हम किसी भी एंगल से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये एनिमल कैसा है? एसिमेट्रिकल है, यानी इसकी बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? सेल इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, किनका? फाइलम पोरीफेरा का। फाइलम पोरीफेरा को जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट मीन्स जो शारीरिक संगठन होता है वो कोशिकीय प्रकार का होता है। दे आर मल्टीसेलुलर बट कांट फॉर्म टिश्यू बिकॉज दे हैव लूज कनेक्टिव सेल्स। इनकी जो सेल्स होती हैं बहुत लूजली अरेंज्ड होती हैं, जिसके कारण ये क्या? टिश्यू फॉर्म नहीं कर पाते।
मल्टी सेलुलर होने के बावजूद टिश्यू फॉर्म नहीं कर पाते और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर। बॉडी जनरली अगर हम देखें तो 2 लेयर्स की बनी होती है, यानी इनकी जो जनन परत होती है वो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय होती है। क्लियर। बॉडी वॉल यानी जनन परत कितने लेयर्स की बनी होती है, 2 लेयर्स की बनी होती है। Body wall is composed of 2 layers. First is the outer layer, that is the pinacoderm, and second is the inner layer, that is the coenoderm. Clear? बाह्य परत को, outer layer को हम क्या कहेंगे, pinacoderm, और inner layer आंतरिक परत को हम क्या कहेंगे, कोइनोडर्म। क्लियर। पिनाकोडर्म हैव पिनाकोसाइट सेल्स। पिनाकोडर्म में क्या प्रेजेंट होता है, पिनाकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। कोइनोडर्म में क्या प्रेजेंट होगा, कोइनोसाइट सेल्स या कोइनोसाइट कोशिकाएं या कोलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर। और दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, सेपरेट होती हैं। दोनों मिलकर डिप्लोब्लास्टिक लेयर फॉर्म करती हैं और आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में, इन बिटवीन आउटर लेयर दैट इज पिनाकोडर्म एंड इनर लेयर दैट इज कोइनोडर्म, दोनों लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड जिलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो दोनों लेयर्स को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। क्लियर। दोनों लेयर्स सेपरेट किससे होती हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स से, और उस जिलेटिनस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, मीजोफिल। क्या कहेंगे, मीजोफिल। ठीक है। तो मीजोफिल जिलेटिनस मैट्रिक्स सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन 2 लेयर, आउटर पिनाकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म, एंड देयर organisms of phylum Porifera are diploblastic because it have 2 germ layers. Clear. Next, this is the diagram of phylum Porifera animal. It shows some amoebocyte cells, osculum, coinocyte, ostium, porocyte, mesohyl, spongiocyte, spicules, and pinacocyte. This is the water canal system present in phylum Porifera. Clear. Ostium, pinacocyte, spicules, spongiocyte, mesohyl, porocyte, ostium, conacocyte, osculum. These are the parts present in animals of Porifera. Clear. This is the water transport system. Clear. Because phylum Porifera have canal system, through canal system water come inside the body and waste product remove out from osculum. इनकी बॉडी में कोई अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ये सारी चीजें किसके थ्रू परफॉर्म होती हैं, कैनाल सिस्टम के थ्रू। कैनाल सिस्टम इनमें क्या बनाता है, नाल तंत्र। कैनाल सिस्टम इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है जिसके थ्रू इनके बॉडी में डाइजेशन यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारे प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। क्लियर। कैनाल सिस्टम मीन्स क्या हो गया, स्पॉन्जेस हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम जो क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है। दीज आर द सेल्स। ये सेल्स जो है यहाँ से वाटर एंटर करता है जिसको क्या कहते हैं, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट, और ऊपर ऑस्कुलम के थ्रू इनकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, लिक्विड मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सब कुछ रिमूव होता है। क्लियर। वाटर जनरली देखें तो वाटर एंटर किससे करता है, माइन्यूट पोर से। इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया। तो वाटर इनकी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा ऑस्ट्रिया के थ्रू, और कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल कैविटी में जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, और ऑस्कुलम के थ्रू इनकी बॉडी से क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। क्लियर। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका किस में हेल्पफुल होता है, न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, दैट मीन्स चेंजेस ऑफ गैसेस, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी एक्सक्रीशन। क्लियर। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वाटर कहाँ से एंटर कर रहा है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, और स्मॉल पोर्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया।
और यहाँ पे इस एरो से यहाँ से वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो रही हैं, रिमूव हो रही है। न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोई, दैट मीन्स कि इनके बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो लिक्विड मटेरियल के साथ अंदर जाता है बॉडी पोर से। क्लियर। डाइजेशन जनरली इनका इंट्रासेलुलर होता है, यानी जो पाचन होता है वो अंतः कोशिकी होता है, कोशिकाओं के अंदर। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें कहाँ पे स्टोर होता है, जनरली थीजोसाइट सेल्स में। कहाँ पे स्टोर होता है, थीजोसाइट सेल्स में। जिस सेल में इनकी बॉडी में भोज्य पदार्थ संचित होता है उनको हम क्या कहेंगे, थीजोसाइट सेल्स। जनरली इनमें नर्वस सिस्टम यानी नर्व सेल्स, सेंसरी सेल्स एब्सेंट होती हैं। देयरफॉर क्या होता है, they do not show much coordination between the functions of various part of the body. इनकी बॉडी में सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स एब्सेंट होती हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा कोऑर्डिनेशन अपनी बॉडी के पार्ट्स के साथ शो नहीं कर पाते। जनरली इनकी बॉडी जो होती है वो किससे सपोर्टेड होती है, स्केलेटन से यानी कंकाल तंत्र से। और कंकाल तंत्र किसका बना होता है, कैल्सेरियस सेल से या फिर सिलीसियस सेल से बना होता है। और इन कैल्सेरियस सेल्स और सिलीसियस सेल्स में कंटिकाएं पाई जाती हैं, यानी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एनिमल्स। और जनरली अगर हम पोरीफेरा के एनिमल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मोनोशियस होते हैं। दैट मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट बिकॉज दे आर हर्माफ्रोडाइट। और कैसे होते हैं, मोनोशियस। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बर्डिंग। दीज आर द एनिमल्स विच शोज फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाय गैमीट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन देखें तो इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अगर हम इनमें क्लीवेज देखें तो क्लीवेज इनका कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट देखें तो इनडायरेक्ट होता है। क्यों इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट, बिकॉज इट हैव सम लार्वा। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। और इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट होता है यानी परिवर्धन होता है, परिवर्धन कैसा होगा, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा। लार्वल स्टेज अगर हम देखें तो फर्स्ट इज द पैरेन्काइमुला लार्वा, सेकेंड इज द ट्राइकेमेला लार्वा एंड थर्ड इज द एम्फीब्लास्टुला लार्वा। क्लियर। ये लार्वा इनमें जो प्रेजेंट होती हैं, पहला क्या है, पैरेन्काइमुला, नेक्स्ट है ट्राइकेमेला, नेक्स्ट है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। दीज आर द लार्वा प्रेजेंट इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। ठीक है, ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से पूरी होल बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जनरली जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, रीजनरेशन जो होगा वेल डेवलप्ड होगा। अगर हम बात करें किसकी, फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन की या वर्गीकरण की, तो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन फॉर्मेशन, यानी कंकाल तंत्र की उपस्थिति के आधार पर फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास इज द कैल्सेरिया, second class is the hexactinellida and third class is the Demospongiae। 3 क्लासेस हैं फाइलम पोरीफेरा में। फर्स्ट क्लास क्या है, कैल्केरिया, सेकेंड क्लास क्या है, हेक्सैक्टिनेलिडा और थर्ड क्लास क्या है, डेमोस्पॉन्जिए। अगर हम कैल्केरिया की बात करें तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, शैलो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इट मीन्स ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। हेक्सैक्टिनेलिडा के एनिमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, डीपर पार्ट ऑफ द सी, समुद्र की गहरे पार्ट्स में पाए जाते हैं। डेमोस्पॉन्जिए की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, दे फाउंड इन बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। इट मीन्स ये समुद्री जल और साथ ही साथ
ताजे जल दोनों में पाए जाते हैं। कैलकेरिया के एनिमल्स जितने होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सॉलिटरी, इट मींस एकल। और कैसे होते हैं? कॉलोनियल यानी निबही। ये समूह में भी रह सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं। ये कैसे होते हैं? दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं और कैसे होते हैं? कॉलोनियल। हेक्सैक्टिनेलिडा की अगर हम बात करें, हेक्सैक्टिनेलिडा के एनिमल्स कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं, इट मींस दे आर सॉलिटरी और ये एकल रहते हैं, अकेले रहते हैं। डेमोस्पोंजेई की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? कॉलोनियल। क्लियर? कैलकेरिया के एनिमल्स सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं। हेक्सैक्टिनेलिडा के एनिमल्स सॉलिटरी होते हैं। डेमोस्पोंजेई के एनिमल्स कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर की, तो जितने भी एनिमल्स कैलकेरिया क्लास में आते हैं सबका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल होगा। अगर हम हेक्सैक्टिनेलिडा की बात करें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम बात करते हैं डेमोस्पोंजेई की तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा, डेमोस्पोंजेई। कैलकेरिया में स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं? कैल्सेरियस होते हैं, दैट मीन्स इट मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। हेक्सैक्टिनेलिडा के स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं? 6 लेयर्स, दैट मीन्स ये किससे के बने होते हैं? 6 परत, 6 लेयर्स के बने होते हैं और ये सिलिका के बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सिलीशियस। डेमोस्पोंजेई के जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें स्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है? सिलीशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है और इसमें 6 से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगी। स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है? स्केलेटन स्ट्रक्चर एब्सेंट भी हो सकता है। स्पिक्यूल्स की अगर हम बात करें, कैलकेरिया के स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। हेक्सैक्टिनेलिडा के स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्लास के बने होते हैं। डेमोस्पोंजेई की अगर हम बात करें तो इसके किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा, डेमोस्पोंजेई, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें किसकी? कैलकेरिया की, तो इसमें आ जाएगा साइकॉन। साइकॉन इज ऑल्सो नोन एज स्काइफा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट है ग्रैंशिया। हेक्सैक्टिनेलिडा की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कह सकते हैं बिकॉज इट लुक लाइक अ फ्लावर बास्केट। हाइलोनीमा, हाइलोनीमा को ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहते हैं बिकॉज इट लुक लाइक अ रोप। एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोस्पोंजेई की बात करें, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जल में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कैलिना, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेड मैन फिंगर्स। क्लियर? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। हियर वी डिस्कस अबाउट फाइलम पोरीफेरा। क्लियर?